Hello students, how are you all? Welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. So students, we have an app by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store for Android phones. Once you have downloaded and logged in with your Gmail ID, you will be transferred to your home page where you can see all the courses that are offered by us. Once you have purchased the course, you can see your courses in the My Course section. But why our courses are so better? Why we think we provide you one of the best content? Because we provide you content on daily basis. In the daily basis, we provide you current affairs with 20 questions quiz as well as the PDF of the current affairs of daily. Then similarly for weekly, on weekly basis we provide you current affairs PDF as well as a 50 questions quiz that will help you to revise all the content that you have learned. Then on monthly basis also we provide you top 100 current affair questions PDF that will be the compiled PDF of the 100 questions of that particular month that will be very helpful for you. And not just this friends, we provide you in English as well as in Hindi too. So both English and Hindi students can enjoy our courses. Apart from this friends, we also provide you banking related question answers, the banking related MCQ questions, the quizzes that will help you prepare for the bank exams. Not just that friends, we provide you a new way of learning, that is your infotainment infographics. That is a different and interesting way of learning. Apart from this, we cover 20 topic wise current affairs. These topics are important such as apps, portals, important days, books and authors days, national affairs, international affairs, sports, defense, all these topics, these are highly important and questions from these particular topics are asked. Also we cover state-wise current affairs also that will help you to prepare for your state exams. Also friends, as I told you, if you use the code Vikas10, you will be given extra 10% discount on the purchase you make. If you have any problem regarding login and your application, then you can contact us on support@of affairscloud.com. This is our email ID and you can contact us on our mobile phone, that is 9677333386. हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हैप्पी न्यू ईयर सभी दोस्तों को, सभी स्टूडेंट्स जो भी हमारे साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, जो हमारी वीडियोस डेली देखते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। हमारे 300K कहो या फिर 3 लाख सब्सक्राइबर्स हमारे पूरे हो गए हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, टू आवर अफेयर्स क्लाउड टीम, टू कैरियर्स क्लाउड टीम। और जो भी बच्चे हमारे साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, ये आप सभी की मेहनत, जो आप हमारे साथ डेली वीडियोस देखते हैं, आप जो डेली कमेंट करते हैं, जो वीडियोस को लाइक करते हैं, ये सब उसी की मेहनत है। ये उसी की वजह से आज हम ये माइलस्टोन अचीव कर पाए हैं और हम चाहते हैं इसी को हम आगे ले जाएं और जल्द से जल्द हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर का टारगेट अचीव करना चाहते हैं। और ये सिर्फ पॉसिबल हो पाएगा आपकी वजह से। अगर आप चाहेंगे, अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, अगर आप इन वीडियोस को आगे शेयर करेंगे अपने दोस्तों को, उनको बताएंगे कि कितना अच्छा एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म रहेगा अफेयर्स क्लाउड फॉर करंट अफेयर्स, तभी हम ये टारगेट को अचीव कर पाएंगे। चलिए, ये तो हो गई हमारी एक थोड़ा सा मोटिवेशन, क्योंकि देखो वीडियो बनाते हैं ना तो मोटिवेशन चाहिए होता है। मोटिवेशन मिलेगा तो क्या पता हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएं वो उसमें हम अपना 100% और अच्छा दें, उससे नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे से वीडियो बनाएं। तो मोटिवेशन मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तो मोटिवेशन मिलने के लिए आप क्या कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और लाइक के साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि क्या आप चाहते हैं ये सेशन अच्छा लगा तो बताएं, और क्या आप चाहते हैं ये सेशन हम फ्यूचर में लाते रहें, तो वो भी कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। क्योंकि ये चीज़ें दोस्तों ऐसी होती हैं जिससे मोटिवेशन मिलती है, और मोटिवेशन आप जानते हैं किसी भी काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप पढ़ाई करते हैं तो आपको भी तो मोटिवेशन चाहिए ना, कि मोटिवेशन मिलेगी तभी हम सक्सेसफुली और अच्छे से मेहनत करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब करते हैं अपना रिवीजन। सबसे पहले देखो, अच्छी बातें हो गई, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब पढ़ाई पे फोकस करते हैं। फोकस यहाँ पे रहेगा, कंसंट्रेट कीजिए। ये करंट अफेयर्स हम रिवाइज कर चुके हैं, लेकिन फिर से रिवाइज करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जैसे बात करें तो अभी नेशनल गोपाल रत्ना अवार्ड 2022 को किन के द्वारा अनाउंस किया गया था, किस मिनिस्ट्री के द्वारा अनाउंस किया गया था? वो है फिशरीज मिनिस्ट्री के द्वारा। देन अभी तमिल राइटर इमायम को सेलेक्ट किया गया फॉर कुवेम्पू नेशनल अवार्ड के लिए। इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे इसको। अवनी लखेरा ने रिसीव किया अभी पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कि पैरा स्पोर्ट्स
पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए किनको सम्मानित किया गया? अभी वो है अवनी लेखेरा। देन अभी किन्होंने गोल्ड जीता इन द ई गवर्नेंस कैटेगरी, किस मिनिस्ट्री के द्वारा जीता गया? इंपॉर्टेंट, वो रहेगी पंचायती राज मिनिस्ट्री ने गोल्ड जीता अभी इन ई गवर्नेंस कैटेगरी। पूर्णिमा देवी बर्मन, इनको ऑनर किया गया चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से। आई रिपीट, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया? पूर्णिमा देवी बर्मन को। नेक्स्ट आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, इनको अवार्ड किया गया एट द 41st IITF 2022। देन नरगेसी, ये एक ईरानियन फिल्म है जिन्होंने ICFT यूनेस्को गांधी मेडल को जीता एट द IIFI 53। और ये क्या है? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। कहाँ पर हुआ था? गोवा में हुआ था। अगर मैं बात कर रहा हूँ यूनेस्को की, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर होता है? पेरिस फ्रांस में। और पेरिस फ्रांस में याद होगा आपको ओलंपिक गेम्स होंगे 2024 के। देन इसको इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, इन्होंने यूनेस्को अवार्ड को जीता। पूछा जाएगा यूनेस्को अवार्ड किन के द्वारा जीता गया? छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय के द्वारा। फिर हम बात करते हैं फाइड की, ये किससे रिलेट होता है? चेस से। फाइड के डेप्टी प्रेसिडेंट कौन बने थे? विश्वनाथ आनंद, जो कि इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर थे। और कब बने थे ये इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर? 1988 में। तो अभी फाइड की वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप हुई थी 2022 की, जहां पे मैग्नस कार्लसन, जो वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर है, उन्होंने टॉप किया, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। विमेंस कैटेगरी की बात करूं तो टेन जेंगयोई, ये वीमेंस कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जीता। और इसी में सविता श्री, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता इंडिया के लिए। ठीक है, और इसी के साथ याद रखेंगे मैग्नस कार्लसन का ये चौथा रैपिड वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हम जानते हैं G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। G20 का जो इंडिया ने मोटो रिलीज किया था वो क्या था? वसुदेव कुटुंबकम। इसी के साथ साथ याद रखेंगे अश्विनी वैष्णव, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इनके द्वारा लॉन्च किया गया G20 DIA, जो कि है डिजिटल इनोवेशन अलायंस। G20 का डिजिटल इनोवेशन अलायंस, और इसी के साथ साथ एक स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन भी इनके द्वारा लॉन्च किया गया। ये DIA क्या है? बेसिकली डिजिटल इनोवेशन अलायंस। इसके अंडर क्या होगा कि हम जानते हैं कि डिजिटलाइजेशन आप ऑल ओवर द वर्ल्ड देख रहे हैं कि हर जगह डिजिटाइजेशन हो रही है। अब डिजिटाइजेशन से बढ़ाने के लिए और नई नई सर्विसेज को लाने के लिए नए नए हम प्रोडक्ट्स को लॉन्च करें। अब जैसे अब फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देखें, व्हाट्सएप क्या करता है कि किसी भी दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन को एनेबल करता है। आपको कोई मैसेज भेजना, आप इजीली दूसरे व्यक्ति को मैसेज भेज सकते हैं। और ये क्या है? एंड टू एंड क्रिप्टेड बोला जाता है। मतलब व्हाट्सएप का मैसेज जो आपने सामने वाले को भेजा, कोई थर्ड पर्सन उस मैसेज को नहीं पढ़ सकता। ठीक है, तो ये क्या है? एक सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। ऐसे ही आपने देखा जूम कॉल्स, कोविड के टाइम पे जूम मीटिंग्स बहुत ज़्यादा चली थी। रीज़न भी कि आप घर बैठे बैठे इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं विद अदर पर्सन, आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे ही क्या है, नई नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए फ्यूचर में, जिस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सके, नई नई सर्विसेज आ सके, ताकि लोगों की लाइफ और ईजी हो सके, इसीलिए ये G20 का डिजिटल इनोवेशन अलायंस को भी लॉन्च किया गया। फिर अब हम जानते हैं कि इंटरनेट का ज़माना है, तो इंटरनेट में बहुत ज़्यादा स्कैमर्स भी होते हैं। बहुत ज़्यादा आपको देखेंगे जो लोग किसी को भी स्कैम कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों से बचे रहने के लिए, जिनको हम बोलते हैं साइबर थ्रेट्स, ऐसे साइबर थ्रेट से बचने के लिए ही एक स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन लॉन्च किया गया कि किसी व्यक्ति के साथ ऑनलाइन फ्रॉड ना हो जाए, किसी व्यक्ति के पैसे बैंक से निकाल लिए ना जाए कोई झूठ बोल के या किसी और तरीके से, जिसको हम साइबर थ्रेट बोलते हैं। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी का भी ध्यान रखने के लिए और नए नए रिसर्च लाने के लिए भी दो लॉन्च किए गए। एक था डिजिटल इनोवेटिव अलायंस और दूसरा था स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन। नेक्स्ट हम बात करते हैं तमिलनाडु गवर्नमेंट। तमिलनाडु का सबसे पहले आप मुझे बताओ स्टेट एनिमल कौन सा है? स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु वो है आपका नीलगिरी तार। ये आप देख सकते हैं, ये एक गोट की स्पीशीज है। ठीक है, ये किसकी? एक गोट की स्पीशीज है, नीलगिरी तार। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया का पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया नीलगिरी तार को कंजर्व करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि इनकी स्पीशीज एंडेंजर्ड ना हो जाए या फिर ये खत्म ना हो जाए। ठीक है, तो नीलगिरी तार कहाँ से है? तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा एक पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। क्या?
नीलगिरी तार को कंजर्व करने के लिए, जो कि नीलगिरी तार क्या है, स्टेट एनिमल है तमिलनाडु गवर्नमेंट का। फिर तमिलनाडु चेन्नई की अगर मैं बात करूं तो इन्हीं के द्वारा यहाँ पर पहला एम्बुलेंस लॉन्च की गई थी स्ट्रीट एनिमल्स के लिए। और यहीं पे अगर तमिलनाडु की मैं बात करूं तो 44th एडिशन ऑफ फाइट चेस ओलंपियाड भी यहीं हुआ था। फिर M.K. स्टालिन चीफ मिनिस्टर रहेंगे तमिलनाडु के, और इनके द्वारा ब्रेकफास्ट स्कीम लॉन्च की गई थी फॉर द स्कूल गोइंग प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स, ताकि वो स्कूल में आके अपना भोजन कर सके, जैसे मिड डे मील होता है आपका। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं तमिलनाडु एंड HCL फाउंडेशन के द्वारा अभी एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, जिससे क्या होगा, गल्फ ऑफ मन्नार को सफाई करने की बात की गई। मतलब गल्फ ऑफ मन्नार में आप देखेंगे क्या होता है, फिशिंग नेट्स होते हैं, फिशिंग नेट्स हो गए आपके, यहाँ पे प्लास्टिक्स होती हैं, कूड़ा कचरा जो होगा, जो गार्बेज होता है आपका पानी में, ठीक है। बेसिकली हम कहें तो यहाँ पे वाटर को क्लीन करने की यहाँ पे बात की गई, ताकि जो आपके मरीन लाइफ है वो एक बढ़ सके, जो आपके आसपास का सराउंडिंग एरिया वो क्लीन हो सके। इसीलिए डर्बीज फ्री बनाने के लिए, मतलब गार्बेज फ्री बनाने के लिए गल्फ ऑफ मन्नार को अभी तमिलनाडु एंड HCL फाउंडेशन के द्वारा अभी एक, बेसिकली आप कह सकते हैं एक दोनों साथ है प्रोजेक्ट के साथ लॉन्च किया गया है यहाँ पर, ठीक है। किसको साफ करने की बात की गई, गल्फ ऑफ मन्नार को यहाँ साफ करने की बात की गई। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे स्वास्थ्य गर्भ। स्वास्थ्य गर्भ क्या है, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है प्रेग्नेंट वीमेंस के लिए। प्रेग्नेंट वीमेंस के लिए मतलब जैसे आप देखेंगे कि जो प्रेग्नेंट वीमेन होती हैं उनको कोई फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हो गया, जिनको उनको जैसे मान लो कोई कॉम्प्लिकेशन आ गया एकदम, कोई भी व्यक्ति, कोई भी फैमिली मेंबर या वीमेन एकदम घबराहट हो जाते हैं, डर जाते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है, तो ऐसे टाइम पे वो किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहते हैं, तो उन्हीं के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई। मान लो उनको कोई दिक्कत आ गई और वो डॉक्टर से बात करना चाहते हैं, तो ईजिली ये मोबाइल एप्लीकेशन उनको डॉक्टर से कनेक्ट करा देगी इन द रिस्पेक्टिव एरिया, या जो भी एरिया में वो रहते हैं आसपास, या डॉक्टर या ऑनलाइन जो भी डॉक्टर अवेलेबल होगा उनको वो कनेक्ट करा देगी इजीली। मान लो उनको किसी डॉक्टर की नीड है या किसी नर्स की नीड है, उसी टाइम पे वो चाहते हैं कि उनके पास कोई उनका केयर करने के लिए आ जाए, तो वो भी फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, मान लो इनको अर्जेंटली किसी हॉस्पिटल में जाना है, किसी क्लिनिक में जाना है, तो उस क्लिनिक के एड्रेसेस, उस क्लिनिक की इंफॉर्मेशन, उन क्लिनिक का नंबर, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्वास्थ्य घर पे प्रोवाइडेड होगा। लोकेशन का आपका पूरा डाटा यहाँ पे अवेलेबल होगा इस स्वास्थ्य गर्भ एप्लीकेशन पे। तो याद रखेंगे ये स्वास्थ्य गर्भ किसके द्वारा डेवलप की गई थी, IIT रुड़की एंड एम्स दिल्ली के द्वारा मिलके ये स्वास्थ्य गर्भ मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया फॉर प्रेग्नेंट वीमेन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस की, जिसको टीबी बोलते हैं। टीबी किसको इफेक्ट करती है, ये आपके लंग्स को इफेक्ट करती है, ये कम्युनिकेबल डिजीज है। और इंडिया के द्वारा अभी एक टारगेट ईयर सेट किया गया कि हम टीबी को एलिमिनेट कर देंगे बाय 2025। और एक चीज़ और, नॉट जस्ट दिस, इंडिया काफ़ी सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा काफ़ी सारे ऐसी स्कीम्स को लॉन्च किया गया कि रूरल एरियाज़ में स्पेसिफिकली हम टीबी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करा सके, क्योंकि टीबी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो लोगों को जब टीबी होती है तो उनको वो सेक्लूड कर देते हैं फ्रॉम द सोसाइटी, क्योंकि एक टीबी कम्युनिकेबल डिजीज हो गई तो लोग उनसे बच के रहना चाहते हैं, जिससे क्या होता है कि जो पेशेंट है उनके मेंटली भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए अवेयरनेस कैंपेन क्रिएट करने के लिए कि ये ठीक की जा सकती है, इससे ऐसे लोगों को सेक्लूड नहीं करना चाहिए, इसीलिए इंडियन ऑयल ने अभी एक MOU साइन किया है सेंट्रल टीबी डिवीजन के साथ, ताकि टीबी को एलिमिनेट किया जा सके। और जिस हम प्रोजेक्ट की अभी बात कर रहे हैं, ये 2 स्पेसिफिक स्टेट्स में लॉन्च किया जाएगा, उत्तर प्रदेश में एंड छत्तीसगढ़ में। आई रिपीट, ये पर्टिकुलर इंडियन ऑयल और सेंट्रल टीबी डिवीजन के द्वारा जो MOU साइन किया गया, ये प्रोजेक्ट टीबी एलिमिनेशन प्रोजेक्ट स्पेसिफिक 2 स्टेट्स में होगा, उत्तर प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। तो ये टीबी एलिमिनेशन प्रोजेक्ट इंडियन ऑयल के द्वारा कहां पर, यूपी एंड छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल गुड गवर्नेंस डे की। नेशनल गुड गवर्नेंस डे किसकी मेमोरी में ऑब्जर्व किया जाता है, ये ऑब्जर्व किया जाता है बर्थ एनिवर्सरी पे ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। आप देख सकते हैं ये कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। याद रखेंगे 25 दिसंबर को। फिर यहीं पे याद रखेंगे हम 25 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे। और नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑब्जर्व किया जाता है कि 25 नवंबर को हमारा संविधान बन के रेडी हो गया था। और लागू कब हुआ था, लागू हुआ था 26 जनवरी को, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं रिपब्लिक डे।
एक इंफॉर्मेशन और याद रखेंगे, 2023 में जो हमारा रिपब्लिक डे होगा 26 जनवरी को, यहाँ पर जो हमारे चीफ गेस्ट आएंगे ये कहाँ से आ रहे हैं, इजिप्ट से आ रहे हैं। अब आप होमवर्क का ये लिख लो कि जो चीफ गेस्ट का नेम क्या रहेगा, कौन है ये चीफ गेस्ट जो इजिप्ट से आ रहे हैं 2023 में जो हमारा रिपब्लिक डे होगा उस पर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, कॉम्प्ट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज की गई। इन्होंने बताया कि जो बोटानिकल गार्डन सेटअप किए गए थे 48 करोड़ की लागत से, जिससे जो हमारे थ्रेटेंड प्लांट्स हैं उनको कंजर्व करने की बात की गई थी, वो फेल हो गए हैं। जिसका मतलब जो हमारे पैसे हैं वो भी वेस्ट गए, और जो हमारे प्लांट्स थे, जो थ्रेटेंड स्पीशीज थी प्लांट्स की, उसको कंजर्व करने की यहाँ पे बात की गई थी, वो भी अब कंजर्व नहीं किए गए इन बोटानिकल गार्डन की मदद से। रीजन कैन बी मैनी, या तो वहाँ पे देख रेख अच्छी नहीं हुई, या फिर जो क्लाइमेट था वो सूटेबल नहीं रहा, जो प्लांट्स थे वो लुप्त हो गए क्योंकि उनको सर्वाइवल इंस्टिंक्ट नहीं था, उनको जो सर्वाइवल कंडीशंस चाहिए थी वो नहीं प्रॉपर मिल पा रही थी। इन द सेंस अगर हम इन द नटशेल बात करें तो जो बोटानिकल गार्डन सेटअप किए गए थे थ्रेटेंड प्लांट स्पीशीज को कंजर्व करने के लिए, वो फेल हो गए हैं डिस्पाइट 48 करोड़ रुपीस के बजट को लगा के। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस। कब ऑब्जर्व किया जाता है ये इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस? ये 27 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है टोबैको फ्री जोन। अभी किसको बनाया गया है? एम्स दिल्ली को टोबैको फ्री जोन बनाया गया है। इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री कौशल काम कार्यक्रम, इसको रीनेम करके क्या रखा गया? प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, इसको पीएम विकास स्कीम के नाम चेंज किया गया। फिर 8th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 की बात करें, कहाँ पर होगा? भोपाल मध्य प्रदेश में होगा। 48 जीएसटी काउंसिल मीटिंग कहाँ पर हुई? न्यू दिल्ली में। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ऑर्गेनाइज किया दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल को। फिर हिंदुजा ग्रुप ने इन्वेस्ट किया 35,000 करोड़ रुपए इन महाराष्ट्र अक्रॉस 11 सेक्टर्स। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किए प्रोजेक्ट वर्थ 6,800 करोड़ रुपीज इन त्रिपुरा एंड मेघालय। इंडिया एंड श्रीलंका ने लॉन्च किया फेरी सर्विसेज बिटवीन कानकेश संथुराई एंड पौंडीचेरी इन जनवरी 2023। और फिर बात करें तो 1 वीक 1 लैब, ये कंट्री वाइड कैंपेन है जो कि 6 जनवरी 2023 से लॉन्च करने की बात की गई। किसके द्वारा? CSIR के द्वारा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। फिर बात करें IDEX, इन्होंने अभी 150वां इनोवेशन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ऑल्ट एयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के साथ। इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखेंगे IDEX का ये 150वां इनोवेशन कॉन्ट्रैक्ट रहेगा ऑल्ट एयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के साथ। फिर बात करते हैं GIXI। ये GIXI क्या है? GIXI ये नाम है आपका इंडिया के पहले गैस प्राइस इंडेक्स का। आई रिपीट, इंडिया के पहले गैस प्राइस इंडेक्स का नाम रहेगा GIXI, जो कि इंडियन गैस एक्सचेंज के द्वारा लॉन्च किया गया था। GIXI, ठीक है। फिर बात कर रहे हैं हम INS वजीर की। अब देखो क्वेश्चन 3-4 तरीके से यहाँ पे पूछा जा सकता है कि इंडिया का जो 5th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है उसका नाम क्या रहेगा? वो है INS वजीर। अब ऐसे पूछ लेंगे INS वजीर ये कौन से नंबर का स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है जो कि इंडियन नेवी को मिला? तो ये 5th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है INS वजीर। काफी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे आज के रिवीजन के करंट अफेयर्स, ठीक है। अब बात करते हैं जो आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन पे चलते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्चुअली इनॉग्रेट किए गए प्रोजेक्ट्स वर्थ 7,600 करोड़ रुपीस। ये प्रोजेक्ट्स आपके रेलवे से रिलेटेड रहेंगे, रेलवे सेक्टर से रिलेटेड रहेंगे, और ये कहाँ पे इनॉग्रेट किए गए हैं? वेस्ट बंगाल में इन प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट करा गया। काफी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो इनकी जो माता है, इनकी मदर, वो 100 साल की हो गई थी और उनका रिसेंटली अभी निधन हो गया है अहमदाबाद गुजरात में। फिर कमिंग बैक, अगर मैं वेस्ट बंगाल की बात करूं तो वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? ममता बनर्जी जी। यहाँ पर अगर मैं बात करूं गवर्नर कौन रहेंगे? वो है डॉक्टर CV आनंदा बोस। यहीं पे आपको 2 टाइगर रिजर्व भी इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, एक तो है बुक्सा टाइगर रिजर्व और दूसरा है सुंदरबन टाइगर रिजर्व, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहां पर एक चीज और याद रखेंगे इंपॉर्टेंट कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा 7th वंदे भारत एक्सप्रेस को भी यहां पे फ्लैग ऑफ किया गया था, ठीक है। 7वें वंदे भारत एक्सप्रेस को भी फ्लैग ऑफ किया गया फ्रॉम वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट आ जाता है आर्ट पार्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक टेक्नोलॉजी,
पार्क। आई रिपीट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क। ये IISc के द्वारा लॉन्च किया गया एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, बैंगलोर में है। और इन्होंने अभी गूगल के साथ अभी एक जॉइन हैंड्स किए, मतलब इनके साथ ये एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसमें ये क्या होगा कि AI पावर्ड प्रोजेक्ट वानी को यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। वानी हिंदी में कहते हैं लैंग्वेज को, ठीक है। अब जैसे हम देखते हैं इंडिया में, आप देखेंगे हर जगह एक डिफरेंट लैंग्वेज होती है। आप डिफरेंट स्टेट में जाएंगे, डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती है, अलग अलग बोली है। यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ी देर बाद चलेंगे, भाषा बदल जाती है, आपकी डायलेक्ट बदल जाती है। तो अगर फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं कि कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहता है कोई व्यक्ति, तो वो अपनी लैंग्वेज में उन्होंने कोई स्क्रिप्ट लिखी या उन्होंने मान लो कोई बुक लिखी अपनी लैंग्वेज में, उस बुक को दूसरा व्यक्ति पढ़ना चाहे जो कि सेम फील्ड में काम कर रहा है, तो उनको वो ट्रांसलेट कराना इजी बनाने के लिए, उस ट्रांसलेशन को इजी बनाने के लिए, और जो डाटा सेट है उनको कलेक्ट करके उसके बेसिस पे AI की मदद से हम ये लैंग्वेज का एक पूरा डाटा सेट, एक पूरी लैंग्वेजेस का, पूरी जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, जो हमारे पूरी किताबें हैं, जो हमारे ग्रंथ्स हैं, उन सब का एक डाटा बनाया जा सके। इसीलिए ये एक पैन इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है आर्ट पार्क के द्वारा अलोंग विद गूगल इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, गूगल के साथ मिलकर क्या लॉन्च किया गया, प्रोजेक्ट वानी, ठीक, काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। प्रोजेक्ट वानी बेसिकली एम क्या रहेगा, टू कंपाइल कॉम्प्रिहेंसिव डाटा सेट्स ऑफ ट्रांसक्राइब टेक्स्ट एंड स्पोकन लैंग्वेजेस फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया एंड आर ओपन सोर्स वाया वानीज वेबसाइट, ठीक। अगर मैं आर्ट पार्क की बात करूं तो चेयरमैन हब गवर्निंग बोर्ड के कौन रहेंगे, गोविंद रंगराजन जी। हेडक्वार्टर का है IISc बैंगलोर में है। गूगल की बात करें तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, हम सभी जानते हैं, सुंदर पिचाई। और हेडक्वार्टर कहाँ है गूगल का, कैलिफोर्निया USA में। नेक्स्ट पर आते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा अभी पद्मा को एज अ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी अप्रूव कर दिया गया है फॉर पब्लिशर्स के लिए, जो न्यूज़ और करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। तो वो आपकी क्या है, प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन पद्मा को अभी एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी क्या अप्रूव कर दिया गया है फॉर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर पब्लिशर्स ऑफ न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स अक्रॉस इंडिया। पद्मा क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है विद 47 डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स, विल लुक एट ग्रीवियंसेस रिलेटेड टू डिजिटल मीडिया न्यूज़ कंटेंट ऑन इट्स प्लेटफॉर्म, ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, हम जानते हैं G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की भी। तो UNSC के द्वारा भी पहला एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया है म्यांमार के ऊपर। अगर आपको याद हो तो एक वीडियो आई थी एक महिला की कि वो डांस कर रही थी और पीछे हम देख रहे थे म्यांमार का जो कूप चल रहा था। तो ये जो कूप हुआ था 1 फरवरी 2021 में हुआ था। क्या हुआ था कि म्यांमार की आर्मी के द्वारा जो वहाँ की करंट गवर्नमेंट थी, सू की यीस की इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उनको डिटेन कर लिया गया था। तो अभी जो म्यांमार के जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा रेजोल्यूशन आया म्यांमार में इन आफ्टर 74 ईयर्स की जो लीडर है वहाँ की आंग सान सू की, इनको रिलीज किया जाए, एज वेल एज जो बाकी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको भी यहाँ रिलीज करने की बात की गई। इन म्यांमार 15 मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो क्राइसिस हुई थी उसमें चाइना, रशिया और इंडिया ने डिनाइड, मतलब इन्होंने वोट करने से डिनाई कर दिया था, और बाकी 12 में इन्होंने इनके फेवर में वोट करा था। तो अभी क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अपना पहला रेजोल्यूशन लाए म्यांमार के ऊपर कि जो वहाँ की लीडर को डिटेन किया गया था आर्मी के द्वारा, उनको एज वेल एज जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है उनको रिलीज करने की यहाँ बात की गई। फिर बात करते हैं टीबी की रिसर्च की। हम देख ही चुके हैं ट्यूबरक्लोसिस, टीबी आपके लंग्स को इफेक्ट करती है, कम्युनिकेबल डिजीज है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट ईयर क्या है कि हम 2025 तक टीबी को एलिमिनेट कर देंगे इंडिया से। और अभी एक और न्यूज आई जो कि ट्रीटमेंट एक्शन ग्रुप टैग के द्वारा एक डाटा रिलीज किया गया जिसमें बताया कि जो हमने अमाउंट है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो फंडिंग लगती है वो $1 बिलियन से क्रॉस कर चुकी है। मतलब अभी तक हम देखें तो $1 बिलियन 2021 में हम खर्च कर चुके हैं जस्ट फॉर रिसर्च इन ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप इज अ जिनेवा स्विट्जरलैंड बेस्ड यूनाइटेड नेशन अ होस्ट एंटिटी दैट एम्स टू एंड डिजीज बाय 2030। मतलब स्टॉप टीबी पार्टनरशिप जो यूनाइटेड नेशन बेस्ड है, इनके द्वारा टारगेट क्या रहेगा कि हम 2030 तक टीबी को एलिमिनेट कर दें। लेकिन इंडिया का टारगेट क्या है कि हम 2025 तक टीबी को एलिमिनेट कर दें।
और इसी रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि हमने जो $1 बिलियन अभी तक खर्च करे हैं वो अमाउंट कम है एज कंपेयर टू जो अमाउंट हमें चाहिए कि टीबी को एक्चुअल में एलिमिनेट करने के लिए जो हमारे टारगेट ईयर सेटअप किए गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एंड सिंध बैंक ने अभी एसबीआई कार्ड के साथ टाई अप किया टू लॉन्च अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। तो डायरेक्ट याद रखेंगे, पंजाब एंड सिंध बैंक ने पार्टनर किया एसबीआई कार्ड के साथ ताकि क्या लॉन्च किया जा सके, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को यहाँ पे लॉन्च करने की बात की गई। तो आप इसके बारे में डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, डायरेक्ट ये इंफॉर्मेशन याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड। श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड को अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा $100 मिलियन की फंडिंग अप्रूव की गई है और इसी को हम बोले तो 830 करोड़ रुपए की फंडिंग अप्रूव की गई, किनके द्वारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। और ये जो अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड को, ये होगा ताकि जो वीमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी मदद की जा सके, उनको व्हीकल्स प्रोवाइड की जा सके। मान लो उनको लोन चाहिए, व्हीकल के लोन चाहिए, तो वो लोन प्रोवाइड ये कराएंगे। अब जैसे व्हीकल क्या होगी, आप नई व्हीकल ले सकते हैं या सेकेंड हैंड व्हीकल ले सकते हैं, तो उसके लिए लोन प्रोवाइड कराने की बात की गई अंडर दिस। और उसी के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी $100 मिलियन या फिर 830 करोड़ रुपए का लोन प्रोवाइड किया गया है टू स्मॉल श्रीराम फाइनेंस बैंक, श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड को। अगर मैं श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड की बात करूं, ये मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है, चेयरमैन रहेंगे जुगल किशोर मोपात्रा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं आईडीबीआई बैंक। इन्होंने अभी एक पैक्ट साइन किया फॉर द ट्रांसफर ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स टू एलआईसी म्यूचुअल फंड। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स, पूछा जाएगा किस बैंक ने अभी एक पैक्ट साइन किया है फॉर द ट्रांसफर ऑफ देयर म्यूचुअल फंड स्कीम्स टू एलआईसी म्यूचुअल फंड, वो रहेगा आपका आईडीबीआई बैंक। अगर यहीं पे मैं आईडीबीआई बैंक की बात करूं तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे, वो है राकेश शर्मा। अगर मैं बात करूं कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1964 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर कहां रहेगा, मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट बात करते हैं, टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस ने इंट्रोड्यूस किया है अभी इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड विद यूएलआईपीएस। यूएलआईपीएस क्या है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। आई रिपीट, टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस ने इस्टेब्लिश किया अभी एक इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड विद यूएलआईपीएस जो एनेबल करेगा टू इन्वेस्ट इन मिड कैप कंपनीज एंड राइजिंग मार्केट लीडर्स विद potential to provide significant future growth. The application for ULIP plans with न्यू फंड ऑफरिंग विंडो वाज ओपन टिल 31 दिसंबर 2022। यहीं पे टाटा एआईए यूएलआईपी ऑफरिंग के ऑफर करेगी, जैसे फॉर्चून प्रो, वेल्थ प्रो, फॉर्चून मैक्सिमा एंड वेल्थ मैक्सिमा, जो कि यूज किया जा सकता है टू इन्वेस्ट इन fund. Up to 30% of the fund's total asset may be allocated to equity and equity related investments that are not in the mid cap range. तो वही आपकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ये न्यूज़ रहेगी। अब आ जाते हैं ईएजी लॉरेट अवार्ड। ईएजी क्या है, सबसे पहले तो आपको यही समझना है। ईएजी आपका होगा यूरेशियन ग्रुप। बेसिकली क्या है, अभी बैंक ऑफ बड़ौदा को और बैंक ऑफ बड़ौदा ने जीता है ईएजी लॉरेट अवार्ड ऑन फाइनेंशियल सिक्योरिटी। मतलब जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है इंडिया में आफ्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने ईएजी लॉरेट अवार्ड को जीता इन द इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जो कि सोची रशिया में हुआ 10 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, इंडिया इज वन ऑफ द 9 मेंबर्स ऑफ द यूरेशियन ग्रुप ऑन कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म। ठीक है, ये है आपका यूरेशियन ग्रुप ऑन कॉम्बैटिंग लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म, ये आपका ईएजी हो गया। ठीक है, ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपकी एफएटीएफ है ना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये क्या करती है कि जो ग्रुप या फिर जो कंट्री मनी लॉन्ड्रिंग करती है उस पर चेक रखती है, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग टेररिज्म को हो रही है, या फिर जैसे हम कहें तो टेररिज्म को पैसा पहुंचाना ताकि वो टेररिज्म को बढ़ावा दे सके, उस पर चेक रखती है एफएटीएफ। तो सिमिलरली आपकी ये ईएजी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो अभी ईएजी लॉरेट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया, बैंक ऑफ बड़ौदा को। एफएटीएफ की बात करें तो ये रेड लिस्ट, ग्रे लिस्ट रिलीज करती है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग कंट्री जो करती है उनका नाम रखा जाता है। और एफएटीएफ की अगर मैं बात करूं तो प्रेसिडेंट कौन रहेंगे, वो है टी राजा कुमार, और ये पहले सिंगापुरियन बने जिनको अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, आईडीबीआई बैंक ने रीअपॉइंट किया सुरेश
खटनाहर को एज द मैनेजिंग डायरेक्टर, एज द डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर अ ईयर, मतलब इनको रीअपॉइंट किया गया टू द पोजीशन ऑफ डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर अ ईयर। किनको? सुरेश खटनार को। किसके द्वारा? आईडीबीआई बैंक के द्वारा ये रीअपॉइंटमेंट किया गया। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। और ये 1 साल का इनका टाइम पीरियड रहेगा। 15 जनवरी से इनकी का शुरू हो जाएगा ये टाइम पीरियड 2023 से, ठीक। अगर मैं इनकी बात करूं सुरेश खटनार की, इन्होंने आईडीबीआई बैंक को ज्वाइन किया था 1997 में। इनकी अगर बात करूं 37 ईयर्स ऑफ का बैंकिंग एक्सपीरियंस है इनको, जिसमें से 25 साल इन्होंने अपना आईडीबीआई बैंक में बिताए हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं। इंडियन आर्मी अपॉइंट्स लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया एज देयर न्यू इंजीनियर इन चीफ। आई रिपीट, इंडियन आर्मी ने अपॉइंट किया लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया को एज द न्यू इंजीनियर चीफ। और ये किनको रिप्लेस करेंगे? ये रिप्लेस करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह को, ठीक है। हरपाल सिंह को ये रिप्लेस करके अब नए न्यू चीफ इंजीनियर कौन बने हैं? न्यू इंजीनियर इन चीफ कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया जी। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, ठीक है। ये 1986 के बैच ऑफिसर हैं एंड एलुमनाई हैं ऑफ इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए, जो कि देहरादून में है। नेक्स्ट आ जाते हैं अडानी ग्रुप। हम जानते हैं एनडीटीवी, इन्होंने अपना 27.26% स्टेक अपना अडानी ग्रुप को सेल कर दिया है, ठीक है। इन्होंने इतनी परसेंट इक्विटी सेल कर दिया फॉर ओवर 600 करोड़ रुपीस। ये डायरेक्ट न्यूज याद रखेंगे। और इसी के साथ एक और चीज याद रखेंगे, जो प्रेजेंटर है एनडीटीवी के, उन्होंने भी इस न्यूज के बाद रिजाइन कर दिया था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिट्जर विनिंग जैपनीज आर्किटेक्ट अराटा इसुजाकी, उनका भी रिसेंटली निधन हो गया। प्रिट्जर प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है? ये दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म, ठीक है। जर्नलिज्म के फील्ड में ये जैपनीज आर्किटेक्ट को अरोटा इसुजाकी, इनको ये प्रिट्जर प्राइज से सम्मानित किया गया था और रिसेंटली इनका भी निधन हो गया। तो ये न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। इसी के साथ साथ याद रखेंगे 91 की एज में इनका निधन हुआ है। फिर ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? जापान से बिलोंग करते हैं, ऑलराइट। और 1931 जापान में ही इनका जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट आते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं हीराबेन, जो कि मदर है नरेंद्र मोदी की, इनका रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 100, अहमदाबाद गुजरात में। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं एक बुक की, जो है द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री। ये बुक ऑथर की गई है साइमन सेबैक के द्वारा और ये एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है। ये जो द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री, इस बुक में बताया गया कि कैसे फैमिलीज ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी फ्रेंड, पूछे जाने के पूरे चांस रहेंगे कि अभी टूरिज्म सेक्टर को इंडस्ट्री स्टेटस देने वाली वो कौन सी स्टेट बनी? वो है असम। आई रिपीट, टूरिज्म सेक्टर को इंडस्ट्री स्टेटस देने वाली वो कौन सी स्टेट बनी है? वो है असम। यहाँ पे असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा यह प्रपोजल अप्रूवल किया गया कि जो इंडस्ट्री असम में जो टूरिज्म सेक्टर है उसको हम क्या इंडस्ट्री का स्टेटस देंगे। इससे क्या होगा, जो रेस्टोरेंट्स है, कैफेटेरियाज है, हेल्थ क्लब्स है, स्पा है, वेलनेस सेंटर्स है, ये एलिजिबल हो जाएंगे फॉर ऑल द इंसेंटिव जो कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंडर आते हैं। जिससे क्या होगा, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो इन सेक्टर्स में बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे एंड यहाँ पे जो टूरिज्म है उसमें भी हमें बढ़ावा देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किए 7,600 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट। ये रेलवे प्रोजेक्ट्स रहेंगे, वेस्ट बंगाल में इनॉग्रेट किए। 7th वंदे भारत एक्सप्रेस को भी यहाँ से फ्लैग ऑफ किया गया। फिर आर्क पार्क आईआईएससी ने भी हैंड्स ज्वाइन किए विद गूगल के साथ ताकि एआई पावर्ड प्रोजेक्ट वानी को लॉन्च किया जा सके। गवर्नमेंट ने अप्रूव किया पद्मा को एज अ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी फॉर द पब्लिशर। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अडॉप्ट किया पहला रेजोल्यूशन ऑन म्यांमार इन 75 ईयर्स और यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर हैं एंड पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको यहाँ पे रिलीज करने की बात की गई। टीबी रिसर्च फंडिंग ट्रेंड्स 2005 से 2021 के बीच में बात करें तो जो टीबी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ना, उसमें हम $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट देख चुके हैं, जो कि सबसे हाईएस्ट देखने को मिली इन 2021।
पंजाब एंड सिंध बैंक ने पार्टनर किया एसबीआई के कार्ड के साथ टू लॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ पे $100 मिलियन का ग्रांट प्रोवाइड किया टू SFL फॉर व्हीकल लोन्स टू वीमेन एंटरप्रेन्योर्स, नई या फिर सेकेंड हैंड व्हीकल्स के लिए। फिर IDBI बैंक ने साइन किया एक एग्रीमेंट टू ट्रांसफर स्कीम्स ऑफ IDBI म्यूचुअल फंड्स टू LIC म्यूचुअल फंड। टाटा AIA लाइफ ने इंट्रोड्यूस किया एमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड विद ULIPS। बैंक ऑफ बड़ौदा ने EAG लॉरेट अवार्ड को जीता ऑन फाइनेंशियल सिक्योरिटी। IDBI बैंक ने रीअपॉइंट किया सुरेश खटनार को एज द डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर अ ईयर। इंडियन आर्मी ने अपॉइंट किया लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया को एज द न्यू इंजीनियर इन चीफ। नेक्स्ट आ जाता है अडानी ग्रुप। इन्होंने एक्वायर किया 27.26% इक्विटी स्टेक जो कि हेल्ड किया गया था NDTV फाउंडर्स के द्वारा फॉर ओवर 600 करोड़ रुपीज। प्रिक्जर विनिंग आर्किटेक्ट अराटा इसोजाकी इनका निधन हो गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मदर हीराबेन इनकी 100 साल की एज में इनका निधन हो गया अहमदाबाद गुजरात में। हिस्टोरियन साइमन सेबैग इन्होंने एक बुक ऑथर की द वर्ल्ड, ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। फिर असम के द्वारा अभी टूरिज्म सेक्टर को एक इंडस्ट्री का स्टेटस दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑलराइट, तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं आज के होमवर्क पर। पहला, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन हैज बीन इनॉग्रेटेड किस स्टेट में। सेकंड, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज डेवलप्ड अ प्रोटोटाइप ऑफ अ रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन फॉर विच कैटेगरी ऑफ पीपल। थर्ड आ जाता है विच स्टेट कमेंस इंडियाज फर्स्ट नीलगिरी तहार प्रोजेक्ट, अभी हमने डिस्कस किया था। फिर फोर्थ, यहां पे इसको फोर्थ लिखेंगे, इंडियन आर्मी हैज हैंडेड ओवर फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउसेज फॉर सोल्जर्स एट विच सिटी। और पांचवा क्वेश्चन आ जाता है आपका 14th ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम ये कहां पर हुआ था। तो ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स। आई होप आपको असाइनमेंट समझ आ गया है। अगर पसंद आया तो ऑल यू हैव टू डू इज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपके क्या व्यूज रहेंगे हमारे सेशन पे। क्या आप चाहते हैं हम ऐसा सेशन लाते रहें, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड फिर से फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। अगर न्यू साल है, नया साल है, तो रेजोल्यूशन भी लेके चलेंगे कि बहुत मेहनत करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे और गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर करेंगे। ऑलराइट, that's all for the day. Thank you and have a nice day. That's all for the day friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.